Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the lecture number 10 of wave optics, and our topic today is polarization. Light is an electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave and it is transverse in nature. Electromagnet, it means it has both electric and magnetic field. And electric field is vibrating perpendicular to magnetic field. For example, if we have electric field and magnetic field is like this, so electric field is perpendicular to the magnetic field. अगर अगर हम ऐसे देखेंगे कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है दैट्स परपेंडिकुलर टू द both electric and magnetic field. For example, if you have three axes like that, this is the three axes. If this is the direction of propagation of electromagnetic wave इस direction में चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये तीन एक्सिस यहाँ पर मैंने रखी है एक्स वाई एंड जेड मान लो. अब अगर देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इसको माना जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस में चेंज और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चेंज हो रहा है. This direction is the change in magnetic field, this direction is the change in electric field, this is the direction of propagation of electromagnetic wave. So in an electromagnetic wave, the changing electric field is perpendicular to changing, both are perpendicular to the direction of propagation. So this forms an electromagnetic wave, and this is the nature of electromagnetic, it's transverse in nature. So इसका मतलब है जो पहले हम अनपोलराइज्ड लाइट पर आएंगे कि इसका मतलब अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, इसमें अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस प्लेन पर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन पर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन पर. दिस इज द हाउ वी कैन, दिस इज एन अनपोलराइज्ड लाइट. सो इस तरह हम एक अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे दिखाते हैं. हम एक अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे दिखाते हैं कि वो इट मीन्स these vibrations of electric and magnetic field, they are in each possible direction. हर किसी डायरेक्शन में अनपोलराइज्ड लाइट में वाइब्रेशंस जो होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल है. लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट देम इन वन पर्टिकुलर प्लेन, बाकी तमाम वाइब्रेशंस को कैंसिल करके अब एक ही वाइब्रेशंस को रखना, एक ही प्लेन पे वाइब्रेशंस को रखना, तो उसको हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं. यानी अगर ये जो वाइब्रेशंस इस वाली लाइट में जो वाइब्रेशंस हैं दे आर प्रेजेंट इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. सो अगर मैं चाहूंगा कि मुझे चाहिए सिर्फ लाइट जैसे इसकी वाइब्रेशंस इसी प्लेन पर, ऐसे प्लेन, तो इस लाइट को हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट. अब हम अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे भी, ये डॉट and this dot gives this type of vibrations which is entering into the board. It gives dot like vibration. जैसे अगर ये बोर्ड में अंदर हो रही है तो this is the vibrations, और ये vibration ये perpendicular, this is the vibration. So this is all about what this is all about the unpolarized light. So unpolarized light, it is the light in which the vibrations are perpendicular. Unpolarized light in which vibrations are present in every possible direction, but when we restrict these vibrations in a particular direction perpendicular to the direction of propagation, that's called polarization. So what is polarization? The phenomena of restricting the vibrations of light in one particular direction that is perpendicular to the direction of propagation of light, that's called polarization of light. So इस तरह हम unpolarized light को हम polarize कर सकते हैं. So unpolarized light, तो अब हम इसको हम टर्मनाइन क्रिस्टल जो होता है इससे हम पोलराइजेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने एक अनपोलराइज्ड लाइट, ये मान लो हमने एक अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज एन अनपोलराइज्ड लाइट, चाहे आप ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं अनपोलराइज्ड लाइट को. तो इस अनपोलराइज्ड लाइट को हम एक क्रिस्टल होता है जिसको हम टोरलामाइन क्रिस्टल, इसमें क्या वाइब्रेशंस, अब इसकी जो वाइब्रेशंस हैं दे आर लाइक दैट,
इस टूर्नामाइन क्रिस्टल की अपनी वाइब्रेशंस होती है लाइक दैट। तो इस टूर्नामाइन क्रिस्टल पर जब हम ये अनपोलराइज्ड लाइट देते हैं तो ये क्या होता है कि ये जो वाइब्रेशंस हैं, इस तरह वाइब्रेशन करते हैं, ये इस तरह वाइब्रेशन करते हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस है, मान लो ये वाइब्रेशंस इनमें से निकल जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन जो ऐसे वाइब्रेशंस है इनको स्टॉप कर देगा। तो जो लाइट होगी यहाँ पर, तो इसकी वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये है पोलराइज्ड लाइट। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, and this is polarized light. So इस तरह इसकी जितनी भी, या हम अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये है अनपोलराइज्ड लाइट, चाहे आप ये देखो, लेकिन इसको इसने सिर्फ वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में रखी। दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड। और ये हम करते हैं किस क्रिस्टल से? टूर्नामाइन। इस तरह इसके बाद हमने आज के दौर में हम बनाते हैं पोलराइड्स, जिनको हम पोलराइड्स कहते हैं। तो पोलराइड्स से हम पोलराइजेशन को देख सकते हैं। तो व्हाट आर पोलराइड्स? अब हम पोलराइड्स these are the devices which are used to produce the plane polarized light. So this is how this can polarize the light. अब हम पोलराइड्स पर आते हैं। व्हाट आर पोलराइड्स? पोलराइड्स these are the devices which are used to produce the plane polarized. अब पोलराइड इस किस्म की डिवाइस होते हैं। ऐसे मैंने एक डिवाइस बनाया, तो इसको हम पोलराइड कहेंगे, या तो ये ऐसे हो सकता है। अब इसकी वाइब्रेशंस ऐसे, इसकी वाइब्रेशंस ये ऐसे ऐसे करते हैं, ये एक्सिस, लेकिन ये ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब है जब हम एक अनपोलराइज्ड लाइट दिस इज एन अनपोलराइज्ड लाइट, इस अनपोलराइज्ड लाइट को जब हम एक पोलराइड पर डाल देते हैं, इसको हम पोलराइड पर डाल देते हैं ऐसे पोलराइड पर, तो इसमें क्या होता है? इसमें अनपोलराइज्ड लाइट, तो ये यहाँ पर ये जो वाइब्रेशंस हैं, these vibrations which are parallel to the vibrations of this polaride, ये पास होंगे, बाकी जो परपेंडिकुलर है वो पास नहीं होंगे। तो ये वाइब्रेशंस पास होंगे और ये बन गई पोलराइज्ड, और ये बन गई अनपोलराइज्ड, और ये है पोलराइड। तो पोलराइड में जब अनपोलराइज्ड लाइट, तो ये पोलराइज होती है। तो दिस इज हाउ वी कैन पोलराइज दैट, एंड यू नो दैट दिस experimentally we can prove that these light waves are transverse in nature। लेकिन यहाँ पर देखो, अब इनकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी 100% है। जब हम इनकी इंटेंसिटी तो 50% रह जाएगी, क्योंकि 50% ऑफ रेडिएशन, बाकी जो भी रेडिएशन इनको इसने रोक लिया है, बाकी जो भी वाइब्रेशन थे इनको रोक लिया है, और इसमें 50। अब अगर इन दोनों पोलराइड्स को मैं मिला के रख सकता हूँ, मैंने एक पोलराइड को ऐसे रखा, एक और दूसरे पोलराइड को मैंने ऐसे, तो देयर विल बी द जीरो इंटेंसिटी। समटाइम्स दिस इज कॉल्ड एनालाइजर, बिकॉज दिस एनालाइज। अब जो पोलराइज्ड लाइट है, इसने इसकी ये वाली जो, आप मान लो ये एक लाइट है, इसमें दो तरह की वाइब्रेशंस हैं। एक ये वाइब्रेशंस है जो ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करके चलती। दूसरी जो वाइब्रेशंस है ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे। तो अब अगर आपने प्लेन को ऐसे रखा, तो प्लेन में इस तरह की वाइब्रेशंस, तो ये वाली वाइब्रेशन निकल जाएगी, लेकिन इसको ये तो स्टॉप करेगा। अब अगर ये वाली वाइब्रेशन निकल गई, ये वाली, अब तो पोलराइज्ड लाइट में सिर्फ ये वाली, अब इसको अगर हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह का पोलराइड, तो ये इसको भी स्टॉप करेगा, क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस अब ऐसे ऐसे, लेकिन आपने पोलराइड को ऐसे रखा, तो ये ऐसे ऐसे करता है, इसने इसको रोक लिया, तो इस तरह ये यहाँ पर डार्कनेस क्रिएट हो जाएगी, 0% लाइट इंटेंसिटी। तो इसका मतलब है इस तरह ये वाली वाइब्रेशन सिर्फ पैरेलल टू दीज वाइब्रेशन छोड़ देगी। अब जो बाकी रह गई पैरेलल टू, इसको इसने रोका, इसको
तो इसका मतलब है इसने एक डायरेक्शन को रोक लिया, इसने दूसरी डायरेक्शन को रोक लिया। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, these vibrations are perpendicular to the direction of propagation. So this proves the transverse nature of electromagnetic waves. Also, with the help of this experiment, we can prove that the light waves are transverse in nature. Transverse means that here electric field and it is changing perpendicular to the direction of propagation, and magnetic field is also changing perpendicular. आगे हमें देखना है कि we can prove mathematically the transverse nature of electromagnetic waves. या हमने प्रूव किया है electromagnetic waves में, वहाँ हमने देखा है, पहले कहा था कि let us suppose that electric field changes in the direction of propagation. लास्ट पे जब हम देखते हैं electric flux 0 आता है, so it shows that there is no change in the of the electric field in the direction in which light is propagating. So if there is no change in that direction in which light is propagating, definitely there will be the change in the direction perpendicular to the propagation. And this is how we can prove that electromagnetic waves are transverse in nature. And here experimentally we can use two polarizers. One is the vibrations axes, vibrating axes here are parallel, here they are perpendicular to this polarizer. And when the electric field is when the light is incident on the crossed polarizers, two polarities which are in crossed form, so then we get zero intensity of light, so it blocks the light. This proves that this can be help in proving that light is transverse nature. So आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी नहीं है कि बल्कि ये चीज हमने आज जो पढ़ा है इसमें हमने पोलराइजेशन पढ़ा, क्योंकि पोलराइजेशन में आपको ये चीज याद रखना है कि जो लाइट होती है इसमें जो वाइब्रेशंस ऑफ लाइट होते हैं, दे आर पॉसिबल, दे आर इन एवरी प्लेन. These electric field vibrations and magnetic field vibration, they are perpendicular to each other, and light has these vibrations present in all the planes. This is called unpolarized light. And when this unpolarized light is incident on some crystals like tourmaline crystal or on the polarizers, so we get only vibrations in one direction. This phenomena of restricting the vibrations of light in only one particular direction, that's perpendicular to the direction of propagation of light, this is called polarization of light. अब जो लाइट है इसमें वाइब्रेशंस प्रेजेंट होती है एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में. जब हम इन वाइब्रेशंस को रोकते हैं तो एक ही डायरेक्शन में हम महसूस रखते हैं वाइब्रेशंस को, तो इस तरह के फिनोमेना को हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम कहते हैं, ये हम बाय यूजिंग द पोलराइड्स भी करते हैं. तो इस तरह ये था पोलराइजेशन. अब इस पोलराइजेशन को हम बाय, देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट्स पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. Polarization, that's also called Bravestor's law. And Bravestor's law में हम कहते हैं कि there is the angle of polarization, tan of angle of polarization is equal to refractive index. We have to prove this in upcoming lectures, and also we have to prove the Malus law, and also we have to prove the uses of polarizers. There are a number of applications of polarizers. For example, these polarizers are using in sunglasses in order to protect our eyes from this very intense lights, like जो हम if we are not possible, it's not possible for our eyes to look on the sun and mostly reflecting surface, so it is better to use the polarizer so that it will stop the 50% of light. It will only allow that light whose vibrations are parallel to the plane of vibrating axis. This is sunglasses in 3D pictures. In order to watch 3D pictures, we use these polarizers in LCDs, in calculators, watches. These help, these polarizers are used. So that will also form a lecture, use of polarizers, वो भी हम डिस्कस करेंगे. Malus law भी हम डिस्कस करेंगे इसमें. तो stay connected and watch these videos and subscribe the channel so that you will get the upcoming lectures. Thank you. It's all for today.